In Uttar Pradesh, the state which produces over 31% of the total potato crop in India, serpentine queues outside cold storage facilities stand testimony to a possible farm crisis across the state. Scanty rainfall and high profits last year enthused farmers to grow more potatoes, and the produce increased by almost 65%, resulting in markets being flooded with potatoes. The result? A price slump leading to farmers failing to recover even their cost of production and a rush to store their produce in cold storage facilities. And it doesn't end here. The Chutta Pashu, or the stray cattle menace, has given rise to a new phenomena in UP's agricultural pattern, as farmers are now shifting from wheat production to more potato production. Long queues outside cold storage facilities, potatoes being dumped in drains, and farm unions burning potato produce to protest against the dismally low rates at which potatoes are being sold. Over the past 3 weeks, these scenes have been witnessed across the potato belt in the largest potato producing state in India. Uttar Pradesh, which produces over 31% of potato produce in India, has had farmers anxious, angry and disillusioned. Farmers rue that they are unable to recover even their cost of production and are forced to queue outside the cold storage facilities. We are in Farrukhabad, in Asia's largest potato market, and are here to share a ground report on why potato has become an eyesore for farmers of Uttar Pradesh. A visit to the Naveen Mandi in Farrukhabad reveals how the slump in potato prices has hit farmers here who produced over 13.5 lakh metric tons of potato this year, which is about 2 lakh metric tons more than the previous year. Ram Sevak Pal, who owns 25 bighas of land in a Farrukhabad village, switches between potato and wheat farming throughout the year. He says that he had reaped good profits from the sale of potato harvest last year, which was sold at ₹1,000 per quintal back then. Encouraged, he sowed potato seeds in the entire tract of land during the sowing season. पिछले वर्ष 16 मार्च 2022 को लगभग 1,000 रुपये प्रति कुंटल भाव था। इस हिसाब से किसानों ने ये समझा कि इस बार भी मुनाफा अच्छा होगा, तो उन्होंने आलू की बुआई ज़्यादा की। पैदावार पिछली साल से कुछ ज़्यादा हुई, लेकिन चूँकि बाहर आलू नहीं गया, अब कुछ आलू में थोड़ा हल्का रोग भी लगा, जिससे आलू और सस्ता रहा। तो इस वजह से गेहूं की बजाय आलू करना किसान ने ज़्यादा मुनासिब समझा। Failing to get a good price for his produce during the early harvest time around December 2022, Ram Sevak decided not to harvest his entire potato crop and let it remain in the ground, hoping for prices to increase during the main harvest, that is, in February-March 2023. But in UP's potato belt, thousands of farmers sowed potato seeds in 6.94 lakh hectares across the state, leading to higher supply in the markets than demand. This resulted in mandis getting flooded with the vegetable and a slump in prices of potato, which started selling at as low as ₹200 to ₹400 per half quintal in some districts. आलू की पैदावार कच्ची में आलू बिका नहीं, तो वो बैलेंस हो गया। भैया कच्ची जो पैदावार होती है आलू की क्यों नहीं बिकी है? वो इतना सस्ता हो गया कि किसान की लागत नहीं निकली, इसलिए उसने बेचा नहीं। अच्छा। जब बेचा नहीं तो वो बैलेंस हो गया। अब वो इस समय इकट्ठा हो गया, इसलिए ज्यादा हो गई पैदावार। Several other farmers in districts like Farrukhabad, Kannauj, Kanpur and Hardoi say that they sowed more potato seed this time than wheat due to the stray cattle menace. Chutta Pashu or stray animals tend to harm wheat crop much more than the potato crop, according to them. ये ऐसा है तो पूरा उत्तर प्रदेश, लेकिन जैसे हरदोई जिले में गेहूं होता था जी, और अब वो आवारा पशुओं की वजह से उन्होंने नुकसान की वजह से आलू आवारा पशु खाते नहीं हैं, और गेहूं है, सरसों है, अरहर वो आवारा पशु खाते हैं, इसलिए उसका भी पूरा रीजन है वो आलू करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये हाल फिलहाल में ज्यादा हुआ है सर? हाँ, ये 2 साल से ज्यादा हुआ है। The price slump has led to farmers queuing outside cold storage facilities across the potato belt as they want to store their produce, hoping to get better prices at a later stage. देखिए, किसानों को वजह ये है मैडम कि जो आलू हम लोग जब सीजन होती है तो आलू के रेट डाउन होते हैं, तो जब आलू जब महंगा होता है, कोई भी किसान हो अपने खेत में फसल करेगा तो 2 रुपए कमाने के सोचता है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, तो इसीलिए हम लोग जो आलू है अपना
लाते हैं ताकि हम कोल्ड में रखें, कुछ पैसे हमको प्रॉफिट होगा तो आगे जिसका भी हम कर्ज पैसा लेते हैं अपना फसल उगाने के लिए, जब हम लोगों की फसल उगती है तो ताकि हम लोग उसको भर सकें जिसका भी पैसा लिया है। इस बार दिक्कत मैडम जी यही हो रही है कि आलू रेट नहीं उठ रहे हैं, सस्ता बहुत है। जी जी, और कोई मैडम जी रेट क्या चल रहा है इस टाइम पे? 100-150 रुपए हमारे ख्याल से है, क्योंकि अभी फिलहाल हमने पता नहीं किया, हम तो कोल्ड में रखने आए हैं। 400 रुपए लागत है खेत में एक पैकेट पे, और बिक रहा है 150 रुपए का। तो आप बताएं। हाँ, 400 रुपए पैकेट, 350 रुपए पैकेट की लागत आती है खेत में, जो 300 रुपए 400 रुपए लेबर लगता है। प्लांटर वाले लेते हैं, बीघे में 5000 रुपए की लागत है, और 100 रुपए के हिसाब से आलू बेचेंगे तो क्या मिलेगा? खेत का ना लागन जाएगा, ना खेत वाले को वहाँ पर कुछ खाद के पैसे नहीं मिले। DAP कर दी 1500 रुपए की, 1800 रुपए की, यूरिया कर दी 45 किलो 400 रुपए की। मतलब हर चीज पे रेट बढ़ाएंगे और आलू पे कोई सुनवाई है ही नहीं। किसान अपना DAP का रेट 1500 हो चुका है, 1800 रुपए 1800 रुपए हो चुका है। उस वजह से 1 क्विंटल जो आलू है उसकी पैदावार पे कितना लागत आ जाती है? 1 कुंटल आलू पे कम से कम कुछ नहीं तो 400 रुपए लागत आती है। और अभी आपके पास 150 रुपए आलू आपका बिक रहा है। हाँ, 300 रुपए के हिसाब से रेट मिलते हैं कुंटल के, तो किसान कौन बेचना चाहेगा? However, many farmers are alleging that cold storage owners are turning them away to favor the big farmers and their old acquaintances, and claim that some owners might themselves be storing their produce to make profits later. उसमें क्या कहते हैं कि कोल्ड स्टोर फुल हो गया, अब आपका जो है आलू नहीं लिया जाएगा। क्या वास्तविकता लग रही है आपको? आप कह रहे थे कि हमें विश्वास नहीं हुआ कि ये कोल्ड स्टोरेज फुल है। हमें जो विश्वास इसलिए नहीं है कि रात में जो पर्सनल लोग आते हैं उनकी जो ट्राली अंदर कर लेते या उतार लेते, लेकिन आपकी नहीं जा पा रही है। जी जी, तो अभी वर्तमान में आप मंडी पर आए हैं, क्यों बेचने को आप मजबूर हुए? कितने में बेच रहे हैं? मजबूर इसलिए हुए जब जो है लेबर पैसा मांग रही है और हमारे पास है नहीं पैसा, तो मान लो मजबूरी सामने, खर्चा नहीं हो रहा पूरा। कितने में बेच रहे हैं आप? 300 रुपए अट्टा दिया है। While some farmers in Lakhimpur Kheri dumped their potatoes in rain, those in Kannauj have themselves destroyed a part of their crop due to the price lump. इस बार कितना आलू आपने उगाया है? आलू उगाया तो 20 बीघा में। 20 बीघा में? हाँ, 15 बीघा लाए पे 5 बीघा में हैरो चलवा दिया है। हाईवा चलवा दिए 5 बीघा? हाँ, 5 बीघा में। अभी आप जो यहाँ कोल्ड में नहीं लिया जा रहा है, कोई रेट बिक नहीं रहा, तो क्या करें? आपकी 5 बीघा में जो पैदावार थी वो नष्ट हो गई है? नष्ट हो गई है। As panic gripped potato farmers, the state government is trying to boost exports to other countries and deficit states of the country, and has announced that it will purchase potatoes at a price of rupees 650 per quintal in 7 districts to start with. अन्य राज्यों में चूँकि डिमांड ज़्यादा है, यहाँ के लोगों को अच्छा पैसा उसका मिल रहा है, इसलिए विभिन्न 13 प्रांत हैं, 13 प्रांतों में अभी तक 207 ट्रक हमारे गए हैं यहाँ से मंडी से। आलू निर्यात हुआ है 5257 मीट्रिक टन का। कितने समय में हुआ है सर? अभी 11 से तारीख से 14 तारीख तक 4 दिन में इतना हुआ है, और अभी बराबर हम लोग मंडी घूम के आ रहे हैं। लगातार यहाँ का निर्यात हो रहा है बाहर आलू का, तो लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है। सरकार का, हमारा सबका ये प्रयास है कि किसी भी किसान को, किसी भी व्यापारी को कोई असुविधा न हो, इसका भी पूरा प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। However, at the potato purchase center in Farrukhabad Mandi, not a single packet of farmers has been sold, officials admit. आलू की ग्रेडिंग में जो मानक अनुरूप की वो तय किए गए हैं वो 45 mm से लेके 85 mm तक है, और किसानों का जो आलू होता है वो एक साइज़ का तो होता नहीं है, 45 mm से 85 mm उसके ऊपर नीचे भी रहता है। इस वजह से किसान सोच रहा है कि अपना आलू एक ही जगह जाके बेचे, ना कि अलग अलग जगह पे। वो अपना, उनको भी समस्याएं होती हैं, और बहुत से किसानों को पता नहीं है कि 45 mm 85 mm क्या साइज़ है क्या नहीं है, तो वो भी अभी जागरूक नहीं है। Artiyas say that farmers are unable to meet the criteria of the size of the potato set by the government, and claim that in future too, no farmer will be able to meet this criteria ever due to lack of training and awareness. नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी 4 दिन से उन्होंने 9 तारीख से चालू किया है अपना, और 10 अप्रैल तक दिखा रहे हैं। अभी तक तो एक पैकेट नहीं भरा गया उनका। उनका कोई दे भी नहीं पाए। यही अब तो मंडी में आ गए, पहले अभी 2-3 दिन MD कोल्ड बोर्ड लगा रहा उनका। अब क्या, हाँ, उनका मानक ऐसा है, कोई किसान दे ही नहीं पाएगा उनको। क्या मानक है सर? उनका मानक है बड़ा मोटा जो आलू होता है वो भी हटा दिया जाए,
और छोटा होता वो भी हटा दिया जाए, बीच का लेंगे साइज, ऐसा साइज बस 45 mm, तो वो कोई ज़्यादा के नहीं चाहिए, तो वो किस, तो इस वजह से अभी उनकी एक बैग भी नहीं खरीद हो पाई है, ना होगी। उसमें भी कल हमें बता रहा था उनका कर्मचारी वहाँ कोल्ड में कि वो पेमेंट भी ऐसे होगा, उसका आधार कार्ड खतौनी से मिलाया जाएगा, तब चेक आएगी, बाहर से लखनऊ से आएगी, कहाँ से आएगी, लखनऊ से आएगी मेरे ख्याल से। Potato exporters, however, highlight the larger issue of lack of awareness and best practices among farmers and the need for government support for provision of good quality seeds. सरकार को अगर किसानों का उत्थान करना है तो उनके बच्चों को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना होगा। जो उन्नतशील के किसान, जो जागरूक किसान हैं, उन किसानों को और अधिक प्रशिक्षित करना होगा कि आप इस तरीके की खेती करिए, ऐसे फार्मों पर भेजना होगा। आप किसानों को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे और अपने हिसाब से मानक तैयार करेंगे तो स्थिति तो ये रहेगी। बीज तो भाई वो तो आंकड़ा है ना कि फर्रुखाबाद या अन्य जिले में कितना आलू बोया जाता है, उसके सापेक्ष क्या हम सरकारी बीज, उन्नतशील बीज क्या हम कृषि केंद्रों पर भेज पा रहे हैं? ये तो आंकड़ा सब लिखा पढ़ी में है, उसको तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें नहीं है। तो अगर सच्चे मन से किसानों की प्रगति करनी है, हालांकि सरकार कर रही है, पहले से बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन और अधिक करने के लिए उसमें और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। निर्यात को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हमें जो खेती में अभी जो उन्होंने कहा था कि 3 काले कानून, ये 3 काले कानून नहीं थे मैडम, वो एक राजनीति के तहत सरकार का बहुत अच्छा प्लान था कि संयुक्त खेती होगी, बड़े बड़े डॉक्टर्स आएंगे, बड़े बड़े ये आएंगे। तो जो कथित लोगों द्वारा उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, भारत सरकार को ये अध्यादेश वापस लेना पड़ा, इससे भारत देश बहुत पीछे चला गया। लेकिन किसानों की खुशी के कारण प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ा कि हम इसको वापस ले रहे हैं। ये बहुत भारतीय किसान, भारतीय इतिहास में ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जो सरकार की मंशा थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे सरकार को किसानों पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई दूसरा विकल्प सोच के भारत के किसानों को, प्रदेश के किसानों को और आगे बढ़ाने की नीति और विचार रखना चाहिए। Encouraged by high profits in potato production last year, farmers of UP grew more potatoes this time. While potato produce stood at 147 lakh metric tons last year, this year potato production is around 242 lakhs metric tons. This resulted in a higher supply than demand and a subsequent slump in potato prices. Lack of inter-country and interstate exports further hit potato prices. While the state government has now declared that it will purchase potatoes at ₹650 per quintals from farmers in select districts, it is hardly benefiting farmers on ground as their produce is failing to meet the standards set by the government. Potato exporters say that amid high production, farmers may be compromising with their quality. They highlight the need to ensure ample availability of good quality seeds for the farmers. Best agricultural practices coupled with a robust support system from the government side is the need of the hour, they say. In Farrukhabad, this is Shikha Salaria for The Print. For more such videos, subscribe to our YouTube channel and follow our Twitter and Facebook pages.